we'll begin with problem 17 now. It says that the graph of log I base e versus time for a charging RC circuit is shown as a dotted line where I is current. When the value of resistance is doubled, we're asked which of the four solid lines best represents log I base e versus time. So yeah, we have a charging RC circuit and we have changed the resistance and we are being asked to find what effect it has on the graph. So तो एक चार्जिंग आरसी सर्किट के लिए हमें याद होना चाहिए कि जो करंट होता है इट इज़ इक्वल टू आई मैक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइड बाई आर सी. करेक्ट. जहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है और टी टाइम है. राइट. और जो आई मैक्स है दैट इज़ इक्वल टू ई बाई आर, जहाँ पे E is the EMF of the battery और R is the resistance through which the capacitor is being charged. Correct. तो अब अगर हम log to the base E of I निकालते हैं तो हमें मिलेगा log to the base E of E by R Right. minus T by RC. Correct. ठीक है. तो अब So we can already see that graph में एक offset आ जाएगा. हाँ. Right. तो एक तो ये आ गया, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा log to the base E of E minus log to the base E of R minus T divided by RC. Right. ठीक है. तो एक तो जो स्लोप है इसका, तो जो स्लोप है इस ग्राफ का इट इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाई RC. ठीक है. और जो y इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस के को कहाँ पे मीट कर रहा है, Right. that is equal to log to the base e minus log to the base e of I. Okay. ठीक है. अब अगर हम r को डबल करते हैं, Right. मतलब जो नया r है वो 2r है. Okay. ठीक है. तो हमारा जो स्लोप है वो बन जाएगा -1 डिवाइड बाई 2RC. तो हमारा स्लोप कम हो गया. Right. ठीक है. और जो y इंटरसेप्ट है वो भी हो जाएगा log e माइनस log e टू r. तो Right. ये भी कम हो जाएगा. Okay. तो अब हमारा जो ओरिजिनल लाइन है यहाँ पे हमें यहाँ से देखना है कि कौन से लाइन का y इंटरसेप्ट कम हो गया है और कौन सा स्लोप कम हो गया है. Right. तो वो हम देख सकते हैं कि P और Q उनके y इंटरसेप्ट कम है. Right. लेकिन इन दोनों में से सिर्फ Q का स्लोप कम हुआ है. तो Okay. इसका मतलब है वी आर लुकिंग फॉर लाइन नंबर फॉर लाइन Q. Okay. So that was problem 17 in which we were told to find out what effect changing the value of resistance has on the graph of log I versus T, where I is the discharge current being discharged from the RC circuit, and we found out that when we consider the log I versus T graph, we have to look for an offset of intercept, and also we have to look for a decrease in slope, and here only one graph satisfies that, and that is our solution. So that's problem 17. We look at the next one now. We are coming towards the end of problems for this chapter, and here is problem 18. It says that in the circuit shown, the battery is ideal with EMF F and the capacitor is initially uncharged. Switch S is closed at t equal to 0. All resistances are R ohms. We have to find the charge Q on the capacitor at time t, which will obviously be a function of time, and after that we have to find the current in AB at time t, which again will be a function of time. Along with that, we have to find the limiting value of the current as t tends to infinity. So let's get started. सबसे पहले हम करंट्स अज्यूम करेंगे इस सर्किट में ताकि हम किरचॉफ के लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं. Right. एंड देन विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. Okay. तो सबसे पहले जो बैटरी है उससे मैं अज्यूम करूँगा कि करंट आई फ्लो होता है. Right. ठीक है. तो अगर और मैं अज्यूम करूँगा कि कैपेसिटर में करंट I1 फ्लो हो रहा है. Okay. तो अब जंक्शन रूल के हिसाब से उसका मतलब है कि ए बी में I माइनस I1 Right. आ रहा है. ठीक है. तो अब वी विल यूज़ किरचॉफ्स रूल्स. ठीक है. फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. Right. अब बिफोर कि हम अप्लाई करें किरचॉफ के रूल्स, हम नोटिस करते हैं कि जो I1 है वो कैपेसिटर के अंदर जा रहा है. तो इसका मतलब है अगर हम अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है, Right. तो I1 जो है हमारे पास इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनटू कैपेसिटर. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हम यूज़ करेंगे. अब हमारे दो लूप्स हैं. ठीक है. जिनको हम इस डायरेक्शन में ट्रवर्स करेंगे. तो पहले लूप में हम देखते हैं कि V इज़ इक्वल टू I माइनस I1 टाइम्स R. दिस इज़ ब्रांच A B.
ठीक है, प्लस आई टाइम्स आर, ठीक है। Right. तो दिस वाज ट्रैवर्सिंग हियर, और इससे हमें मिलता है कि आई जो है हमारा इट इज़ इक्वल टू वी प्लस आई वन आर डिवाइडेड बाई 2r, Right. ठीक है। ये एक्सप्रेशन विल बी यूजिंग इट लेटर, Okay. ठीक है। अब दूसरे लूप में हम जाते हैं। Right. यहाँ पे जब हम लूप रूल यूज़ करेंगे, हम इसको ट्रैवर्स करेंगे v, फिर r, फिर c, और फिर वापस r। Okay. Is there a particular way in which you have to do it? Doesn't matter, right? It doesn't matter. Basically तुम्हें सारे इक्वेशंस निकालने हैं अभी, ताकि लेक्चर कम टाइम में हो जाए, तो हम ये इक्वेशंस देख रहे हैं जो हमें पता है कि काम करेंगे। लेकिन अगर तुम सारे इक्वेशंस लिख लो तो फिर उनको देखते देखते इवेंचुअली तुम सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे। Alright. ठीक है। तो अब ओवरऑल सबसे बड़ा लूप में अगर हम देखते हैं तो फिर v जो है इट इज़ इक्वल टू I1R प्लस C के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो हमें पता है इज़ Q डिवाइडेड बाई C, चार्ज बाई कैपेसिटेंस, प्लस IR, ठीक है। अब इसमें हम I की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमें मिलता है v इज इक्वल टू I1R प्लस Q बाई C प्लस V प्लस I1R डिवाइडेड बाई 2R इंटू R, R और R कैंसिल हो जाएंगे। Okay. ठीक है। अब यहाँ से हमें मिलेगा कि I1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3R Right. इंटू V माइनस 2QC, Okay. ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके आएगा। Right. अब हमने पहले कहा था कि I1 जो है इट इज़ इक्वल टू DQ बाई DT, Okay. ठीक है। तो अब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है Q और T के बीच में, Exactly. So now we can solve for it. ठीक है। तो हाँ, अब हम अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं Right. Q के लिए T के इन टर्म्स में, Okay. तो हमें मिल जाएगा Q के एक्सप्रेशन टाइम Right. के हिसाब से। Right. तो दिस इज़ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखूँगा, लेकिन तो हाँ, तुम्हें मिलेगा Q इज़ इक्वल टू CV बाई 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t बाई 3RC, Okay. ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एक्सप्रेशन। याद रखना कि इसमें जब तुम इंटीग्रेट कर रहे हो कि तुम्हें t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, एक आर्बिट्री t तक जाना है, Right. क्योंकि उसके हिसाब से एक कांस्टेंट आता है जो एक जिसके वजह से आंसर काफ़ी चेंज हो जाता है। Okay. So that was part A, and next we have to find the current in AB at time t. So we did that 2 steps ago. राइट, Okay. ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट बी पे, ठीक है। तो जो I1 है, ठीक है, इट इज़ DQ बाई DT। तो जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। उसको डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलता है V बाई 3R इंटू E टू द पावर माइनस 2t डिवाइड बाई 3RC। Right. तो ये है हमारा I1। Okay. अब AB करंट इन AB वाज I माइनस I1, तो हमें Correct. IB रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा जो I था वो हमने पहले निकाला था, इट इज़ V प्लस I1R डिवाइडेड बाई 2R। Right. तो इसमें I1 रिप्लेस कर लो तो तुम्हें मिलेगा ये, इसमें R कैंसिल हो रहा है, Okay. ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ इसको ताकि बाद में हमें सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। Right. तो जो हमारा करंट है, करंट इन AB, Right. वो हमने देखा था इट इज़ I माइनस I1, Okay. ठीक है। तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे अभी, Right. और इससे आएगा फाइनली V डिवाइड बाई 2R माइनस V बाई 6R इंटू E टू द पावर माइनस 2t डिवाइड बाई 3RC, Right. ठीक है। तो ये रहा हमारा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Okay. और अब जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, Yeah. तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा। Right. तो हमारा फाइनल जो करंट होगा एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट विल बी v डिवाइड बाई 2R। Correct. So that was problem 18. I'll walk you through it for now. Yeah. एक और मेथड ऑफ गोइंग थ्रू पार्ट बी ये है कि जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी कैपेसिटर C फुल्ली चार्ज होगा। Okay. उसका मतलब है कि जो सेकेंड लूप है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। Right. तो डायरेक्टली तुम्हारा जो सर्किट You है just have to simplify find the हो जाएगा। voltage at that point, and that will be okay.
तो तुम्हारा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, बस तुम्हारा V और 2 रेजिस्टेंसेस होंगे, तो I इज़ V डिवाइड बाई 2R जो हमने निकाला है. Right. So again, we had to find the charge Q on capacitor as a function of time. So we wrote Kirchhoff's voltage law for those two loops, and from there we obtained the expression for I1, which was again we obtained the expression for dq by dt, and we had to solve for Q, which gave us an expression of Q in terms of time. And to find the current in AB, we differentiated Q again, and we found out I1, and we had a value, we had I in terms of I1. From there we found out I, and again AB, current in AB was I minus I1. So from there we had the expression for current in AB, and the limiting value for that current will simply be the value after setting the exponential term to 0, because at infinity that term is 0. Okay, so that was problem 18. We'll move on to problem 19 now. We've come to the final problem in this chapter, current and electricity. In the given circuit, R1 equals 1 ohm, R2 equals 2 ohms, C1 equals 1 microfarad, and C2 equals 2 microfarad. We're given that E equals 6 volts, and we have to find the charge on each capacitor in steady state. So keep in mind that since it is steady state, we don't actually have to work out the entire thing and express charges as functions of time. We just have to use the techniques which you will hear about now. तो क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में है, कैपेसिटर C1 और C2 में कोई करंट नहीं फ्लो होगा. Right. तो अगर हम अस्यूम करते हैं कि जो बैटरी E है वो करंट I सप्लाई कर रहा है, तो वो C1 और C2 में स्प्लिट नहीं होंगे, तो वो C1 और C2 में नहीं स्प्लिट होंगे. Right. इंस्टेड ये I यहीं से निकल के R1 में ट्रैवल करेगा, Okay. R2 में ट्रैवल करेगा और वापस आ जाएगा बैटरी में. Okay. How will the circuit look like in that situation? तो अगर ऐसे हम देखते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे बैटरी होगा, Right. यहाँ पे R1 हुआ, यहाँ पे R2 हुआ और ये आ गया. Done. ठीक है, इसमें I फ्लो हो रहा है, R1, R2 एंड E. Right. ठीक है, तो अगर हम इस लूप को कंसिडर करते हैं ताकि हमें I का पता लग जाए, तो फिर I इज़ ऑब्वियसली E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. Right. ठीक है, तो अब हमारा I मिल गया. अब इवन दो ये स्टेडी स्टेट में है और कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, Right. ये फिर भी किरचॉफ का लूप रूल सेटिस्फाई करेगा. Okay. ठीक है, तो अब हम दो लूप्स कंसिडर करेंगे जिसमें C1 और C2 है, और उससे हमें इनके चार्जेस पता लग जाएंगे. तो वो है ये लूप और ये लूप. This is because Kirchhoff's voltage law, और वो जो loop law होता है, that is just an expression in terms of voltages. It doesn't have to do anything with any particular device or its state at that point of time. राइट. वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है. तो वो Exactly. कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो हमेशा सेटिस्फाई होगा. Right. ठीक है, तो अब हम लूप 1 देखते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास है IR1 और C1 के अक्रॉस जो ड्रॉप है जो होगा Q1 C1. ठीक है, इनका सम होगा 0. ठीक है, Okay. तो अब इसका मतलब है कि Q1 इज़ इक्वल टू C1 IR1. ठीक है, I वॉज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 विच इज़ 3. तो ये आया हमारा 2 एम्पियर्स. Right. C1 हमें दिया गया था एज 1 माइक्रोफैरड. Okay. ठीक है, दिस इनटू हमारे 2 एम्पियर Right. इनटू हमारा R1 जो है 1 ओम. Right. ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तुम्हें मिलेगा 2 माइक्रो कूलम्स. Okay. ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन होगा. ठीक है, इस माइनस साइन का मतलब है कि जो हमने अज्यूम किया है, ये जो ड्रॉप है हमने अज्यूम किया है C1 Right. के अक्रॉस, उसका रिवर्स होगा. Okay. तो अगर हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका रिवर्स होगा. एक्चुअली ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा. Right. ठीक है, तो सिमिलरली हम सेकेंड लूप देखते हैं Okay. जिसमें हमारे पास है Q2 C2 माइनस E इज़ इक्वल टू 0. Okay. तो Q2 इज़ C2 टाइम्स E. तो ये है तुम्हारे 2 माइक्रोफैरड इनटू 6 वोल्ट्स. तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 12 माइक्रो कूलम. ये Right. पॉजिटिव है, तो जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वो ये रहेगा. Okay. So that is the solution for problem 19. We were given values of R and C for both the networks inside the circuit, and we were given the value of the EMF there. And what we did was we found out the steady state charges on these capacitors. And first we found out the current, and because it's steady state, so we treat the
capacitors like open circuits, so no current flows through them, and our circuit simplifies like this. And so from that we have I. So we use after that Kirchhoff's voltage law in both the loops, since it applies to all situations whether capacitors are charged or discharging or are in steady state. Okay, so that was problem 19, and you can look at the solution. It is -2 microcoulombs and 12 microcoulombs. This -2 refers to the fact that it is in the opposite direction that we assumed. So you can notice the changed polarity from our assumption. So that was problem 19.